ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج رات بھی میری ایسی ہی گزر گئی۔ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں جان گیا تھا کہ آج کی رات بھی میری فاقے میں گزرے گی۔ ایک عورت مجھے جھوٹے منہ پوچھ لیتی تھی، لیکن اس بار اس نے بھی مجھے نہ پوچھا۔ شاید وہ کسی کی شادی میں جانے لگی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی کزن کی شادی ہے اور وہ کسی گاؤں میں جائے گی۔ اس نے مجھے گاؤں کا نام بھی بتایا تھا جو کہ اس شہر کے ساتھ ہی واقع تھا۔ میں نے جیدی کو بتایا تو کہنے لگا کہ ہمیں بھی اس گاؤں جانا چاہیے اور کیا پتا ہمیں اس شادی والے گھر کا پتہ چل جائے اور وہاں جا کر پیٹ پوجا کر لی جائے، لیکن میں اس معاملے میں کافی شرمیلا تھا۔ مجھے یہ سب کرنے میں کافی شرم آتی تھی، جبکہ جیدی بہت تیز تھا۔ وہ تو رات کو ہی بستی میں واپس آتا تھا۔ سب سے زیادہ کمائی بھی اسے کی ہوتی تھی۔ میری کمائی اتنی نہ ہوتی، لیکن پیسے جمع کر کے اتنے بن جاتے تھے کہ میں اپنا وہ خواب پورا کر سکتا تھا۔ یہ پیسے میں فضول خرچ بالکل بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ روز کی روزی میں مانگ کر جو ملتی تھی اسی سے چلاتا تھا۔ جیدی اب میری منتیں کرنے لگا تھا کہ میں اس کے ساتھ گاؤں جا کر کھانا وغیرہ کھاؤں، کیا پتا ہمارے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، کیونکہ گاؤں میں لوگ دلہے پر سے وار کر پیسے لٹاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بھی تیار ہو گیا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجھے مانگنا بھی نہیں پڑے گا۔ میں بھی فقیر والی حالت میں آ گیا تھا۔ 3 سال ہو چکے تھے، اب مجھے اس حالت میں آنا کافی اچھا لگتا تھا۔ شروع میں تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ چاہے مر جاؤں لیکن ایسی حرکتیں نہیں کروں گا، پر جب یہ چیز دیکھی کہ فقیر لوگ بھی صاف ستھرے ہو سکتے ہیں اور وہ بھیس بھی باہر کی دنیا کے لیے ہے، تو میں عادی ہو گیا تھا۔ جیدی کے ساتھ میں نے گاؤں کا رخ کر لیا تھا۔ جیدی تو راستے میں ہی مانگنے سے باز نہ آیا۔ جو بھی گاڑی سے نظر آتی تھی وہ اپنا ہاتھ پھیلا لیتا تھا، پھر اسے 50 روپے تو مل جاتے تھے۔ پھر گاؤں کے جیسے ہی پہنچے لوگ ایک ٹولے کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ ہم اس شادی میں شریک ہو چکے تھے۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر مجھے اس شادی میں وہ عورت دیکھ لیتی تو مجھے کافی شرمندگی ہونی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اگر ایسا ہوا کیا پتا جو رات کو کھانا مجھے نصیب ہوتا تھا وہ بھی ہاتھ سے جائے۔ مجھے کافی فکر ہونے لگی تھی کہ اب میں پیچھے ہی تھا، جبکہ جیدی تو صحیح سبھی بارات کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ میں دور جا کر بیٹھ گیا تھا جدھر اتنا رش نہ تھا، بلکہ اکا دکا لوگ شامل تھے۔ کچھ دیر بعد اس جگہ میں بھی رش ہونے لگا تھا۔ یہ کہہ کر میں اس شادی والے میدان کی بالکل پچھلی طرف چلا گیا۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جس نے چادر سے خود کو ڈھانپ لیا تھا اور وہ دور بھاگ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اسے کیا ہو سکتا ہے، اتنی تیزی سے بھاگنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دلہن بھاگ گئی ہے، اپنی شادی سے بھاگ گئی ہے، دلہن بھاگ گئی ہے۔ سب لوگ اب بھی باتیں کرتے رہے۔ میرے ذہن میں وہ لڑکی آنے لگی۔ میں جان گیا تھا کہ وہی لڑکی ہے جو شادی سے بھاگی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی ابو نے اعلان کر دیا کہ جو بھی لڑکی کو واپس لائے گا اسے بدلے میں 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ میرا خواب ان پیسوں سے پورا ہو سکتا تھا۔ میں کافی خوش تھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ وہ دائیں طرف کو بھاگی تھی۔ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر یہ تو ایک نیکی کا کام تھا جو میں کرنے کی ٹھان لی تھی اور دائیں طرف دوڑ لگا دی، پر لڑکی مجھے دکھائی نہ دی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اوپر سے موبائل تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ مجھے جیدی کی بھی فکر ہونے لگی تھی، مجھے اسے بتا کر آنا چاہیے تھا۔ اچانک ہی میں واپسی کو مڑا اور کافی مایوس تھا جب ایک جھاڑی سے مجھے لال چنری دکھائی دی، کیونکہ اب میری قسمت بدلنے والی تھی۔ میں نے ایک ہی جھٹکے سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ جھاڑی سے باہر نکلی تو میں اسے گھسیٹ کر واپس لے جانے لگا تھا تاکہ 10 لاکھ لے کر واپس شہر چلا جاؤں۔ یہ دیکھ کر لڑکی چیخنے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ وہ میری شکل سے مجھے بالکل بھی نہیں پہچان سکتی تھی، البتہ میری بھوری آنکھوں کو وہ ضرور دیکھ سکتی تھی۔ میرا حلیہ اس وقت کسی بڈھے فقیر سے کم نہ تھا۔ وہ بھی مجھے یہی سمجھ رہی تھی۔ اب مجھ سے کہنے لگی کہ اگر اس نے وہ شادی کی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے قدم رک گئے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ لڑکی ٹھیک بول رہی ہے۔ میں نے اس کی بات سننی چاہی، وہ اسے بولنے کا موقع دیا۔ جب وہ بتانے لگی کہ اس کی زندگی بہت بری طرح پھنس چکی ہے، اس کی جس کے ساتھ شادی ہونے جا رہی ہے وہ 2 بچوں کا باپ ہے، پر یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ وہ کسی کو بتا سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں حیران ہوا تھا، کیونکہ یہ تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی تھی، جبکہ دوسری طرف جب میں دیکھتا تھا کہ وہ 10 لاکھ ملنے سے میں مالدار ہو جاؤں گا اور ساتھ ہی وہ خواب بھی پورا ہو جائے گا، تو میرا ارادہ بدل گیا۔
मैंने लड़की को कह दिया था कि मैं इसे गांव वापस लेकर जाऊंगा। इस पर लड़की रोने लगी थी। मैंने खुद पर काबू पाया था। लड़की को मैंने असल बात बताने का फैसला किया था कि इसके अब्बू ने 10 लाख का इनाम रखा है कि जो भी इसकी बेटी को वापस लाएगा इसे 10 लाख मिलेंगे, और मैं वैसे ही इतने पैसों की तलाश में हूँ। अगर मुझे इतनी रकम मिल जाएगी तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। इसने मेरी बात सुनी तो हैरान हो गई, लेकिन कुछ देर बाद ही इसने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला था और अपना महंगा मोबाइल मेरे हाथ में थमाया था। ये देखकर मैं शौक हो गई थी कि वो क्या चाहती है, जबकि वो कहने लगी थी कि वो करोड़ों की मालिक है, सारी जमीन सब कुछ इसके नाम है, वो अपने बाप की इकलौती औलाद है। अगर मैंने इसकी मदद की तो वो ये सब मेरे नाम कर देगी, इसके साथ साथ मुझे 1 करोड़ देगी। ये सब कुछ मुझे ख्वाब सा लग रहा था। मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जब इसने मुझे वो कार्ड दिया जिसके अंदर बेशुमार पैसे थे तो मैं हैरान रह गया था। कहाँ वो 10 लाख थे और कहाँ ये तकरीबन 1 करोड़। मैंने इरादा कर लिया था कि अब मैं इसके बाप की नहीं बल्कि इसकी साइड पर हूँगा। मैंने इससे पूछा कि अब वो क्या चाहती है। अगली बात इसने जैसे की तो मैं शौक हो गया था। वो लड़की मुझे होशो हवास में नहीं लग रही थी, तभी वो ऐसी बातें कर रही थी। मैंने इसे कहा ये तो नामुमकिन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब वो कहने लगी कि इसे शादीशुदा मर्द के अलावा किसी का नाम चाहिए, चाहे वो जो भी हो, एक फकीर हो या कोई अमीर, इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने इंसान के दिल को देखकर इससे शादी करनी है, ना कि इसकी दौलत को देखकर। इसकी ये बात सुनकर मैं काफी मुतासिर हुआ था, पर ये बात फट पड़ी थी। वो लड़की कह रही थी कि मैं अभी इसी वक्त इसके साथ निकाह कर लूं, इसके बाद वो मुझे दौलत से मालामाल कर देगी। ये सारी दौलत तो मेरा ख्वाब पूरा होने के बाद ही बच जाएगी। मुझे काफी हैरानी हो रही थी। कुछ सोचकर मैंने इसे कह दिया था कि मैं तैयार हूँ, पर इसके बाद इसका रास्ता और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। इसने मेरी बात मान ली थी। मैं इसके साथ शहर आ गया था, पर किसी को पता चल जाता कि मैं इसके साथ मिला हुआ हूँ तो मेरी खैर नहीं होनी थी। लड़की के कुछ दोस्त गवाह के तौर पर शरीक हुए थे और हमारा निकाह हो गया था। वो मेरा नाम सुनकर काफी शौक हो गई थी। मेरा नाम काफी शाही था, जबकि मेरा भेस एक फकीर की तरह था। वो अब मुझे अपने साथ चलने का कह रही थी, जबकि इसने अपने सारे कार्ड और दौलत मुझे दे दी थी। मैं इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया था। कुछ देर बाद हम इसके घर में मौजूद थे। सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जबकि लड़की जिसका नाम हलीमा था वो मुझे अपने साथ लेकर इस हॉल में आई थी जिधर 4-5 मर्द मौजूद थे। मैं काफी डरा हुआ था जब लड़की ने इन सबको कहा कि मैं इसका शौहर हूँ। सबने इसकी बात सुनी तो हैरान हो गए थे। वो मुझे बातें सुनाने लगी थी कि इस गरीब से शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दी थी, पर लड़की ने सबको चुप करवाया था। वो सबको कह दे रही थी कि इसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो अब शहर चली जाएगी। जेदी ने मेरे और हलीमा के निकाह का सुना तो वो भी शौक हो गया था। कहने लगा कि मेरी समात इतनी मेहरबान हो गई है कि मेरा सितारा तो जगमगाने लगा है। मैंने अपना सारा सामान बस्ती से इकट्ठा किया, अब वापस अपने घर जाने लगा था। मेरा ख्वाब पूरा होने का वक्त हो चुका था। ये बात गलत थी कि मैं अपने घर नहीं चाहता था, बल्कि मुझे घर जाना होता था। मैं रोज ही चक्कर लगाता था, पर इस बार मैं कामयाब होकर घर गया था और अपनी अम्मी को इस खुशखबरी के बारे में आगाह किया कि इनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तो ये बात सुनकर अम्मी काफी खुश होने लगी थी। कहने लगी कि जिसने भी मेरी इतनी मदद की है इसके नसीब बदल जाएंगे। मेरे जहन में हलीमा का ख्याल आया था। अम्मी ने मुझे कहा था कि अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर लूं। 3 साल मैंने बहुत मुश्किल में गुजारे थे, पर मैं पहले अम्मी का ऑपरेशन करना चाहता था, तभी आगे का काम करने का सोच सकता था। अम्मी का ऑपरेशन करवाया और अल्लाह के करम से इनका ऑपरेशन कामयाब हो गया था। मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अल्लाह ने हलीमा के रूप में मेरे लिए एक फरिश्ता भेजा था। मैं कभी कभी हलीमा के बारे में सोचने लगता था कि वो किस हाल में होगी। मैं जानता था कि वो इस वक्त इसी शहर में है, पर वो कैसे गुजारा कर रही होगी मुझे इस बात का नहीं पता था। मैं भी हर वक्त इसके लिए दुआ गो था। अम्मी के कहने पर मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू कर ली थी। सबसे अब 3 साल पीछे हो गया था। सभी मुझे वापस देखकर हैरान थे कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया था 3 साल में कि मैंने अपना चेहरा ना दिखाया। इनकी बात सुनकर मैं 3 साल पीछे चला गया था, जब अचानक ही एक दिन अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था और इनके इस दुनिया से जाने के बाद ही अब्बू के बिजनेस पर मेरे दादा लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये सदमा देखकर अम्मी बर्दाश्त न कर सकी और एक रात अचानक ही अम्मी की बीनाई जा चुकी थी। हमारे पास अब कुछ भी नहीं था सवाए इस घर के जो अम्मी को जहेज में मिला था। इस हादसे ने मुझे मजबूर किया था कि मैं इतने पैसे जमा करूं कि अम्मी की बीनाई वापस आ सके।
अब मैं दोबारा से यूं नहीं जाने लगा था। कभी कभी मैं इसके बारे में सोचता था कि शायद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, लेकिन वो मेरे निकाह में थी। इसके होते हुए वो कैसे आगे बढ़ सकती थी? मैंने इस बात पर यकीन कर लिया था कि अब हम दोनों का मिलना नामुमकिन है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक दिन यूनी में वो मुझे किसी लड़के के साथ दिखाई दी थी। ये देखकर मैं शॉक हो गया था। हाँ, मैं मानता था कि इसकी जिंदगी है और इसकी मर्जी पर चलेगी, पर पता नहीं क्यों मैं इस पर हक जताने लगा था। मैं जानता था कि वो मुझे देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं सकेगी कि मैं वही फकीर हूँ, क्योंकि मेरी शख्सियत से इसके पास बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैं इसके पास से गुजरा था जैसे लड़के के साथ वो थी। वो लड़का जाना पहचाना था और काफी अच्छा था। मैंने इससे दोस्ती करना चाही और इससे बातों बातों में पूछ लिया कि क्या वो लड़की इससे लेकर सीरियस है। जब वो लड़का मेरी बात पर हंसने लगा और कहने लगा कि लड़की शादी नहीं करना चाहती, वो तो बस दोस्ती को बरकरार रखना चाहती है। मैं सुनकर काफी हैरान हुआ था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि इसकी शादी ना करने की वजह मैं हूँ। मैंने फैसला कर लिया था कि अब इससे कह दूंगा कि अगर वो मुझसे अलग होना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। एक दफा वो मुझे यूनी के ग्राउंड में अकेली बैठी दिखाई दी। मुझे ये मौका सही लगा। मैं इसके सामने गया तो तवक्को के मुताबिक वो मुझे पहचान न सकी और कहने लगी कि मैं कौन हूँ। मैंने इससे कहा कि मैं सीनियर हूँ, लेकिन किसी वजह से पढ़ाई जारी न रख सका और अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा हूँ। वो मुझे काफी गौर से देखने लगी थी, जब भी कहने लगी कि इसने मुझे कहीं देखा है। इस बात पर मैं तो शौक हो गया था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले। मैंने बात बदली और इससे पूछा कि वो सिंगल है, तो मेरी बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि वो शादीशुदा है। मैं जानता था ये बात सच है, पर इस सच पर यकीन कर लेता तो इसने मुझ पर शक करना था। इसलिए मैंने इसे हंसकर यही कहा कि आमतौर पर लड़कियां ऐसे बोलती हैं जब वो लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहती। तो वो कहने लगी कि अगर वो ये बात सच कह रही हो तो क्या मैं यकीन करूंगा? मैंने इससे कह दिया कि हाँ, मैं इसकी बात पर यकीन करूंगा। मेरे से अब इससे रोज बात हुआ करती थी। कभी कभी मेरे अंदर से आवाज आती थी कि ये सब गलत है, इसे धोखे में नहीं रख सकता हूँ। वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। मुझे इसे अपना नाम भी गलत बताना पड़ा था। ये पहला झूठ था जो मैंने इससे बोला था। मैं बहुत दुखी भी था कि अगर इसे पता चल जाता तो वो शायद मुझसे कभी बात न करती। एक शाम इसने मुझे कॉफी पर इनवाइट किया। जब मैंने इससे पूछा कि इसने कभी मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, ये सुनकर वो कुछ देर उदास हो गई। फिर कहने लगी कि इसकी फैमिली गांव में होती है। मैं सोचने लगा कि वो लड़की मुझे सब कुछ सच सच बताती है। कभी भी इसने मुझे छुपाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। मैं जान गया था कि मुझे अब इस सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि मैं ही वो फकीर हूँ जिससे इसकी शादी हुई थी, पर मुझे कोई अच्छा मौका नहीं मिलता था कि मैं इससे बात कर सकता। एक दिन घर गया तो अम्मी के पास एक औरत मौजूद थी। मुझे देखकर हैरानी हुई। ये वही औरत थी जिससे मैं रात को खाना लेता था। वो मुझे देखने लगी थी जैसे मुझे पहचानती हो। मैं रिस्क नहीं ले सकता था। अगर वो मुझे पहचान जाती तो हलीमा इसकी कजन थी और फिर इसने सब कुछ बता देना था कि हलीमा मेरे पास ही है। इसलिए मैंने जल्दी से इस औरत को घर से बाहर जाने का कहा। वो औरत मुझे इस तरह देखकर डर गई थी और अम्मी के पास से उठकर वापस जाने लगी थी। अम्मी भी मेरी इस हरकत पर काफी हैरान हुई थी। मैं इतना बदतमीज तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने ये हरकत क्यों की, वो भी मुझसे पूछने लगी थी कि इस औरत को वापस भेज दिया क्यों। वो एक रिश्ता लेकर अम्मी के पास आई थी। मैं जान गया था कि अम्मी का इरादा है कि वो मेरी शादी कर दें। ये सुनकर मुझे हलीमा का ख्याल आया। अब मैं पहले हलीमा को सच बताया, अम्मी को सब बताया। मैं सही तरह फंस चुका था। अम्मी को मैंने फिलहाल इनकार कर दिया कि मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, ताकि वो ये बात अपने जहन से निकाल दें। इन्होंने मेरी बात मान ली थी, पर कहने लगी थी कि जब शादी करूंगा तो इनकी पसंद की लड़की से करूंगा। इस बात पर मैं खामोश हो जाता। कभी नहीं लगने लगा था कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की है। इधर हलीमा को बताने की मैं कोशिश करता था, पर मैं कहाँ जानता था कि मेरे बताने से पहले वो जान जाएगी कि वो फकीर मैं ही था। अचानक एक दिन कॉफी शॉप पर मेरे करीबी दोस्त ने मुझे देख लिया था। जब मुझे मेरे नाम से बुलाने लगा, मुझे धचका लगा था। जब हलीमा ने वो नाम सुना तो मुझे गैर यकीनी अंदाज से देखने लगी थी। मेरे चेहरे का जर्द रंग देखकर इसे अंदाजा हो गया था कि सब सच है और बाहर की तरफ भागी थी। मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता था, पर जानता था वो भी कुछ भी नहीं सुनेगी। मैंने इसे कुछ वक्त देने का इरादा किया ताकि इसका दिमाग ठंडा हो जाए और मेरी बात पर वो कुछ गौर कर सके। अब अम्मी को भी सच्चाई बताने का वक्त आ गया था।
मैं इसी दिन अम्मी के पास गया और इनसे बात की कि कैसे इनके ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हुआ है। वो मेरी बात सुनकर काफी हैरान हुई जब मैंने इन्हें बताया कि इस लड़की ने निकाह की शर्त रखी थी। अम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी। वो मुझसे नाराज हो गई थी कि मैं एक बहुत ही कमजोर मर्द हूँ जिसने निकाह करके ये कहकर छोड़ दिया और इसका पैसा ले लिया। अम्मी को मनाने लगा था कि इस लड़की के साथ मैं अब भी हूँ, जबकि निकाह को 1 साल हुआ है। वो लड़की मुझे फकीर के रूप में जानती थी, अलबत्ता मेरे असल रूप में। मैं इसका दोस्त हूँ, लेकिन आज ये पर्दा भी फाश हो गया। अम्मी ने मेरी परेशानी को समझा था। मुझे कहने लगी कि इसका घर अब से इधर ही होना चाहिए। मैंने अम्मी को समझाया कि ये सब दिखने में काफी आसान है, पर ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसको मनाते हुए मुझे पूरा 1 माह लग गया था। मैंने हलीमा को काफी समझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो मान गई। अम्मी ने इससे मिलना चाहा। मैंने अम्मी को हलीमा से मिलवाया। वो इससे मिलकर काफी खुश हुई थी। मैंने हलीमा को बताया कि मेरा वो ख्वाब था कि माँ को मैं दोबारा से दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज होता देखूं। तो वो हैरान हो गई थी। मेरी बात का इसने यकीन कर लिया था। हलीमा से मैंने वादा किया था कि जो भी दौलत मैंने इससे ली थी वो सारी ही मैं इसे वापस कर दूंगा, क्योंकि इस पर सिर्फ हलीमा का हक था। हलीमा हमारे साथ रहने लगी थी, पर हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि इसकी बुनियाद काफी कमजोर थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी कुछ वक्त दूंगा। अम्मी हलीमा का काफी ख्याल रखती थी। अम्मी को ये वजह बताई कि हलीमा ने वो कदम क्यों उठाया। वो भी काफी शौक हुई थी। इन्हें हलीमा पर और भी प्यार आने लगा। मैंने हलीमा को कह दिया कि हम लोग बाहर चले जाएंगे, इधर हमें कोई भी तलाश नहीं कर सकता है और हम दोनों को खतरा हो सकता है। मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। कुछ ही दिनों बाद मेरे पास इतने पैसे तो आ गए थे कि हलीमा ने जो मुझे दिए थे मैं इसे वापस कर सकता। मैंने हलीमा को वापस कर दिए। वो मना करती रही, पर मैंने इसे जबरदस्ती दिए। एक दिन मैं ऑफिस बैठा था जब मुझसे कोई बिजनेसमैन मिलने आया। उसने अपना नाम जावेद बताया। ये नाम मैंने पहली दफा सुना था, लेकिन जेदी को देखा तो मैं हैरान हो गया। इसने भी मेरी तरह अपना नाम बना लिया था। इससे अपने साथ खड़ा देखकर मुझे काफी खुशी हुई थी। हम दोनों मिलते रहते थे और अपनी फकीरी के किस्से याद करते रहते थे। हम लोग खुद हंसते थे। जेदी को अपने बाहर जाने का बताया तो वो काफी उदास हो गया। चंद माह बाद हम लोग बाहर चले गए। हलीमा और मेरे दरमियान सब कुछ ठीक हो गया था। अम्मी की दुआओं का असर था, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता मजबूत हो गया था। पर वो आज अपनी फैमिली को याद करती थी। मैं और अम्मी से तसल्ली देते थे और ठान ली थी कि इस बार पाकिस्तान जाकर हलीमा की फैमिली से बात करेंगे और हलीमा से मिलवाएंगे। इस बात पर हलीमा को कुछ हौसला हो जाता था, वरना वो जितनी मजबूत थी अपनी फैमिली का सोचकर इतनी कमजोर हो जाती थी। लेकिन अम्मी ने हमेशा इसे माँ की तरह पाला था और माँ की तरह इसे प्यार करती थी, ताकि इसे किसी भी किस्म की कमी न महसूस हो। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।